ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایکس مسلم ڈبیٹ سوال کافر میں. تو آج کا ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہونے والا ہے بڑا ہی مزیدار. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ویڈیو کے لاسٹ میں. جی حسیب صاحب. نہیں ایک اور ڈرامہ. السلام علیکم. یار صحیح کیا ڈراموں میں ڈرامے اٹھا رہا ہے یار تو آج. ایدم رکو ذرا صبر کرو. آپ ایدم بے فکر ہو جاؤ. ایدم آج آپ لوگوں نے ٹائٹل لگایا ہے کہ بائبل اور تورات میں اللہ کا نام کیوں نہیں ہے. یہی لگایا نا. بالکل تو صحیح بنا کے لے دیکھا کے نا. آیا کیا؟ مجھے 7,000 پرانی والی بائبل یا تورات دکھا دو, میں لے کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر اللہ کا نام. لیکن میرے کو وہی کتاب چاہیے, 7,000 سال پرانی کتاب. 7,000 سال پرانی بائبل کہاں سے کون لائے گا بھائی؟ تو لے کے آؤں نا, میں دکھاتا ہوں اللہ کا نام. ارے حضرت 7,000 سال پہلے کون سی بائبل لکھی گئی تھی؟ 7,000 پہلے. یہ آپ کا ادب ہے, میں سے پوچھو. یہی ہے ارے کیا بائبل. مست پوائنٹ پکڑا یار. کیا مت پکڑا ہے. مست آپ پوائنٹ پکڑا. 7,000 پرانی میرے کو لے کے آ جائیں بائبل, تو رات لے کے آ جائیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں وہی اللہ کہہ کا رہا نام. ہوں, کس نے کلیم کیا ہے بائبل 7,000 سال پرانی ہے؟ تو کیا نہیں ہے 7,000 پرانی؟ کوئی دنیا کا کوئی کلیم کرنے والا بندہ دکھاؤ جو کہ بائبل 7,000 سال پرانی ہے. چلو صحیح ہے. کیا بائبل میں ملاوٹ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا پہلے دنیا کا یہ بندہ دو تو یہ مان گئے ہو پہلے تم کہ 7,000 سال پرانی بائبل نہیں ہوتی. مجھے یہ بتاؤ. پہلے ایک سوال ختم کرو نا, پھر اگلے سوال پہ چلنا. ایک سوال ختم کریں گے پھر اگلے سوال پہ چلیں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بولیں. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ 7,000 سال پرانی کوئی بائبل نہیں ہوتی دنیا میں؟ کسی نے کلیم نہیں کیا. میرے بھائی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا, تورات عزیز فقی 7,000 دین جو پرانی ہے. سوال کیا اس کا جواب دیں. پہلے مجھے یہ بتائیں, کیا دنیا ہاں. میں کسی نے بھی یہ کلیم کیا ہے بائبل 7,000 سال پرانی ہے؟ تو میں آپ کو بتا, آپ نہیں مان رہے تو غلطی تو ہماری نہیں, ہمارے پاس تو ہے نہیں. ارے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح, کس نے کلیم کیا بائبل 7,000 سال پرانی ہے؟ چلو صحیح ہے. کیا بائبل میں ملاوٹ نہیں ہوئی؟ یار پہلے آپ ایک سیکنڈ, پہلے ایک کلیم پھر دوسرا کلیم. صحیح ہے. تو رات کا بھی تو نام لینا صحیح ہے. کیا تم ایگری کرتے ہو بائبل 7,000 سال پرانی نہیں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تورات 7,000 آپ سال ایک پرانی ہے. سیکنڈ, پہلے بائبل پہ آ جائیں. بائبل کیا بھی, آپ پہلے بائبل بھی. بائبل پہ آ جائیں. ہاں ہاں تو بائبل کس نے کیا بائبل 7,000 سال پرانی ہے؟ تو بائبل ہے نا, قرآن سے پہلے کی نہیں ہے کیا, یا قرآن کے بعد کی ہے؟ بھائی جان میں نے آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, کس نے چلیے میں کہا آسان ہے؟ کر لیتا ہوں. فخر الدین, آسان نہیں کرو, مشکل نہیں کرو, ایک وقت میں ایک بات پھر آگے چلیں گے. پلیز یہ بتاؤ کس نے کلیم کیا ہے بائبل 7,000 سال پرانی ہے؟ پلیز. چلیں میں آپ کو یہ آسان کرتا ہوں, آسان لفظ نہیں آسان نہیں کریں, آسان نہیں کریں, نہیں چاہیے آسان. Give me one single person in the history of humankind جو یہ کلیم کر دے بائبل 7,000 سال پرانی ہے. پلیز مجھے ایک بندہ دے دو. قرآن سے نہیں ہے پہلے تو جو نہیں بائبل آئی بولتے, تھی اپنی وہ بائبل بات لے کے آؤ, میں واپس لے اللہ لے کا نام سوری بول دکھاتا ہوں. کے. چلو میں بات کر رہا ہوں نا, بات کر رہا ہوں نا. حسیب سن, حسیب سن, نہیں ہے تو سوری بول کے اپنی بات واپس لے لے تاکہ آگے ڈسکشن چلے. سوری بولنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بھائی انسان. میوٹ کر کے بیٹھا ہوا. سانپ سو گیا, اس کو سوچ رہا کیا سوری بولوں بے عزتی ہو جائے گی. ارے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بھائی سوری بولنے سے, اپنی بات واپس لے لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. ہاں بھائی میرے حسیب بھائی فقیر دین. چلو صحیح ہے, چلو صحیح ہے. سوری میں بولتا ہوں, سوری 7,000 میری غلطی ہے. صحیح, 7,000 میں وہ کہنی نہیں چاہیے اوکے تھی, بائبل کب میری غلطی ہے, کریٹ ہوئی تھی؟ سوری ہے. چلو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سوری اوکے بائبل کب 7,000 کریٹ ہوئی تھی؟ پرانی نہیں ہے. بائبل میں کب آپ سے کریٹ سوری ہوئی کر رہا تھی؟ ہوں نا,
पहले अभी तक अरे आगे सुन ले भाई, रुकेगा थोड़ा। करो ना आगे, ओके ओके, आप सवाल नहीं करोगे आप। बाइबल कब मुझे created? सुनो, कुरान से पहले वाली बाइबल लेके आओ, मैं आपको अल्लाह का नाम दिखाता हूँ। सही है, यह सही था ना? ये भी झूठ था। Done, done. हाँ दिखाओ, कुरान से पहले वाली बाइबल लाओ। Open any papyrus जो आप खोलना चाहते हैं, पिक अप एनी papyrus, 2nd सेंचुरी का, 3rd सेंचुरी का, 4th सेंचुरी का, 5th सेंचुरी का, जोन सा papyrus स्क्रिप्ट खोलना चाहते हैं खोल लें, मुझे दिखा दें, जाए। ओ मेरे भाई, आपके ही बड़े हैं क्रिश्चियन के सब। खोती के बच्चे, मुझे अब ये नहीं बताएं कि कौन है कौन नहीं है। साहिल साहब देखिए, मैंने कितना ओपन दिया है। हाँ, क्या papyrus क्या हुआ, आपने available। दिया था इसका ऑप्शन? मैंने क्या, दुनिया का कोई भी papyrus खोल दें, ठीक है। papyrus वो मैन्युस्क्रिप्ट्स है बाइबल के, 2nd सेंचुरी के हैं, 3rd सेंचुरी के हैं, 4th सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी के हैं, कोई भी खोल दो, मुझे उस पे अल्लाह का नाम दिखा दो। अब ये किसी बंदे के कॉल पे जाने लगा है, मैंने कहा नहीं, जो इसने क्लेम किया, इसने कहा कि मुझे अल्लाह का नाम, मुझे मोहम्मद से पहले की बाइबल में से दिखा दो अल्लाह का नाम। मैंने कहा दुनिया का कोई भी papyrus खोल लो 7th सेंचुरी से पहले का, मुझे उसमें अल्लाह का नाम दिखा दो। साहिल साहब ओपन चैलेंज दे दिए सर, अब आप इन्हें बात चलो करें। देख, उसको समझ में ही नहीं आ रहेगा पपायस क्या है, पूछो उसको। अब ये आप उससे पूछ लें। चलो मैं पूछता हूँ। हेलो यार हसीब, यूट्यूब बंद करना भाई, एको हो रहा है तेरी आवाज। मेरा यूट्यूब बंद है, आप सही हुआ। क्या अच्छा सुनो, क्या मत, हाँ। इमाम रजा आलिम जो इमाम हुसैन के पोते हैं, उन्होंने यहूदियों के साथ मुनाजरा किया था कि अल्लाह का नाम उन्होंने बाइबल में दिखाया था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाके सर्च करो। सर आप दिखा दें मुझे, तो आप सर्च करो ना। आपके स्कॉलर ने जो भी लिखा है ना, वो बोला papyrus स्क्रिप्ट दिखा दें मुझे। सर देखिए, मुझे बक नहीं चाहिए होती है, और आप हमेशा बक करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। यू आर मतलब एडम साहब, ये तो यहाँ पे और फंस गया। अगर ये मान रहा है कि वो जमाने की बाइबल मौजूद है, तो वो खुद वो बाइबल पेश कर दे और उसमें अल्लाह का मैं तो नाम कह रहा दिखा हूँ ना दे। साहिल साहब, हाँ। यही तो मैंने कहा है कि शो मी द बाइबल जिसमें है। अब मैं क्या करूं? अब ये बोल रहा फलाने ने किया था, टमकाने ने किया था। व्हाई डू आई केयर कि फलाने ने किया था, टमकाने ने किया था? ये फलाना टमकाना कौन है? तू डू यू बता थिंक दे। आई केयर? वो वाला स्क्रिप्ट खोल दे, बात खत्म हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, वो स्क्रिप्ट खोल दे, सारे स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं 2nd सेंचुरी से अब तक। न्यू टेस्टमेंट के साहिल साहब 48,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको कहीं हाँ। दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। पढ़े हुए, स्कैन करके उन्होंने रखे हुए। ओल्ड टेस्टमेंट के 96,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट तोड़ा के, न्यू टेस्टमेंट, इंजील जैसे जो लोग कहते हैं। अब मुझे बताएं, इतने स्क्रिप्चर्स में से ये एक खोल के नहीं दिखा सकता? अगर क्लेम कर रहा है तो दिखा दे। कहाँ से दिखाएगा? होगा तो दिखाएगा ना भाई। पहली बात, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा। पहली बात पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, एकदम को भागने नहीं देना। पहली बात, इमाम रजा आलिम का मैंने आपको बताया, उन्होंने 7 सर तो दिखाओ ना यार। मैं क्या दिखाऊं? जाके गूगल में सर्च कर, आ जाएगा मुनाजरा। मैं थोड़ी मैं यहाँ पर बैठा होंगे तो फिर उसको मेरे पास ले आना। तो वो दिखाओ। बात क्यों कौन पड़ करने गया आया था? तुम? बात कौन करने आया, तुम या तुम्हारा रजा? जो बात करने आया वही दिखाएगा ना, वरना रजा को ले आओ। हसीफ फकुद्दीन, प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप बकवास बहुत करते हैं लेकिन आप कोई चीज प्रेजेंट नहीं करते हैं। और ना समझना चाहता है। एग्जैक्टली मैं तो ये आया था, मैंने साहिल तुम्हें पहले ही कहा यार, ये फिर बकवास में बकवास मारेगा। भाई जिसने क्लेम किया है उसने दिखाना है। जब मैं कोई चीज साहिल क्लेम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दिखाते हो, सब दिखाते हो। उसका मैं टेक्स्ट दिखाता हूँ, उसका आगा दिखाता हूँ, उसका पीछे दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। अब अगर ये क्लेम कर रहा है तो किसका है? मेरा काम है कि वो क्लेम दिखाऊं या इसका काम है क्लेम दिखाए? इसका काम है। एग्जैक्टली अब इसे कहें भाईजान मजीद बक नहीं करे, दिखाए।
حسیب دکھا سکتا ہے تو رک بھائی ورنہ نکل لے, سو جا بھائی جا کے. میں یہاں پر میری آواز آ رہی ہے, میں یہاں پر بھی آ رہی ہے, دوں گا لنک اوپن کرنا اور بابا ایدم کے منہ میں مارنا. ہاں لے کے آ جا. ہاں بھائی حسیب حوالہ لے کے آ گیا. ہاں میں نے تو لے کے آ گیا ہوں. میری بات سنو, ذاکر نائک کو تو پتہ حوالہ نہیں, دکھاؤ, لیکن جو ایدم اور ساحل جو جھوٹ بولتے ہیں وہ پیسے حوالہ کے لیے دکھاؤ, بولتے ہیں, حوالہ یہ دکھاؤ, سچ ہے. حوالہ حوالہ دکھاؤ. ہاں لے کے آ رہا ہوں صبر, میں نے پہلے دیا تھا کامنٹ میں, دوبارہ یہ لو کھولو اس کو. کدھر ہے؟ پرائیویٹ چیٹ میں دیا, کھولو. اوکے, لنکڈ ان. لو جی, امام علی رضا ڈبیٹ ود جوز, ماشاء اللہ. بھائی اسکرین میں لگاؤ, اسکرین میں لگاؤ, اور صبر اسکرین کر, میں. اوے کتی کے بچے صبر کر, پاگل کے بچہ صبر ہی نہیں ہے کہ شیئر کروں, 4 بٹن دبانے ہیں, حرام کے تو بلے, یسوع صبر کی تو کر. کتی ہے, میں کتے کا بچہ, تو یسوع کی کتی, بس تو محمد خوش. کی گنڈ میں سے نکلا ہوا حرامی ہے, دفع ہو جا سالا کتی ماں کا بچہ. اللہ نہ ہو تو ریلیکس ہی نہیں ہوتا, بغیرت انسان. اس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا تیر مار لیا اس نے. پاگل کا بچہ. اچھا, اسلام کہاں سے ثابت کر رہے لوگ؟ لنکڈ سے. لنکڈ سے. یار لنکڈ پلیٹ فارم کس کے لیے ہے بھائی؟ کام دھندے کے لیے, جاب شاپ کے لیے. یہ لنکڈ کو بھی نہیں چھوڑ رہے. نہیں جی, آئے پڑھتے ہیں کیا ہے جی. دا ڈبیٹ آف امام ریزا with the scholars of different sect and leaders of global religion, etc., etc., etc. Imam Ali Musa al-Riza was born in Medina in 148 Hijri. After Hijri, the holy Imam accepted leadership, whatever. اصل مدعا کہاں ہے؟ اچھا جی. Once the Momin planned in presence of Riza, he hold وغیرہ. Momin proposed Riza in order to defeat Imam Riza, reduce scientific value, whatever. Debate Imam holy equivalence. One of the most first debate with Catholic. Okay. In the beginning of the debate, Catholic says how I enter Catholic Imam, two witness, subject, etc. Notes, al-Jalid, وغیرہ. اچھا جی. Christian this, Christian that. Second debate with head of Jews. Miracle upon formal prophet. He said miracle. Third debate, Grace Zoroastrian. ہیں. The result of debate. Where is Allah bhai? اللہ والا کہاں ہے؟ ہاں بھائی, اللہ کہاں ہے؟ اگر تو نے کی کرنا ہے نا, کک دوبارہ کر دوں گا میں نے کہا اللہ کہاں ہے, کہاں سے پڑھوں کہ اللہ والا بتانا بھائی, کلمہ؟ کیوں تو ریڑے صبر, چالے میں اپنے کرتا ہے موبائل یار میں حسیب؟ صبر, اللہ تمہیں وہ والا چیز دکھا کہاں ہے, کہاں سے رہی, پڑھوں؟ دکھا رہا تھا. صبر, یہ تمہارا آرٹیکل کھولا ہے, اللہ کہاں ہے؟ ابے دکھا رہا ہوں نا, صبر کر. ہاں, یہ امام رضا has another debate with Oman Sebi on the قرآن صاحبی. ابے امام رضا has another debate, یہ پڑھا یہ ہے اس کے نیچے. سامنے. ہاں, debate is one of the longest debate. Mostly fell میں اپنے silent. موبائل میں بتا رہا ہوں تیرے کو, اپنے موبائل سے دیکھ کے علی بتا رہا ہوں, تو اسکرین میں پڑھ. تیرے کو اللہ نے آنکھیں دی بھی ہیں. This debate is one of the longest debate of the Holy Imam, in which Omran Sabi mostly fell silent and could not answer back. At the end of this debate, Omran Sabi converted to Islam. The debate with Ali ibn Muhammad Ali Jaham, who held aberrant beliefs about the infallibility of Prophet, is also another one of the Holy Imam in Marv. At the end of the debate, Ali ibn Muhammad al-Jam cried and said, O son of the messenger of Allah, I repent and make a commitment from now on to follow only your words about the Prophet of God. اس میں کہاں ہے ایک بھائی سوال, اللہ؟ اس میں محمد کا بھی نام لکھا ہوا, اللہ کا بھی نام لکھا ہوا, اس نے ثابت گدھے, کیا. تم نے ثابت کیا کرنا تھا؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مناظرہ ہوا ہے, امام رضا کا مناظرہ ہوا.
चल बे खोती का बच्चा, दफा हो, दोबारा ना जुड़ी। अरे बाप रे बाप, और ये कितना खुशी में था तभी, खोल 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 तो पता नहीं स्क्रीन। क्या यार साहिल, तेरे में बहुत पेशेंस है कसम से, मैं इसलिए इस बंदे को बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ यार। खोती का बच्चा इसने दिखाना था कि ओल्डर स्क्रिप्चर्स के अंदर अल्लाह का नाम है। डिबेट में साबित किया था, ओके किधर किधर साबित किया था? अरे भाई किधर साबित किया है? एटा लिंक्ड इन द आर्टिकल। साहिल यार ये क्या है यार? साहिल मारो मुझे, मारो यार, अमित लगा दे, मारो मुझे, मारो लगा दे। अच्छा, ये डिबेट हुई थी, ये कहाँ से मालूम पड़ा इसको? लिंक्डइन से इस्लामिक एक आर्टिकल पढ़ के। नहीं, इस्लामिक कुतब से साहिल, इस्लामिक कुतब से। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये चैनल कैसे मिला? क्या यार, नहीं ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया चैनल। अरे वाह, तो आपके हस्बैंड क्या मोमिन है या नॉन मोमिन है? सर वो बुद्धिस्ट है। हाँ, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट। अच्छा बुद्धिस्ट है, ओके हाँ। ठीक है। और वो किसी को फॉलो नहीं करते, हम्म, किसी को तो भी लेकिन नहीं, किसी को भी नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते। हाँ, लेकिन आप मोमिना थी तो आपकी शादी तो इस्लाम के हिसाब से वैसे भी वैलिड नहीं थी अगर आप नॉन मोमिन। वो सर मैं छोटी सी स्टोरी में आपको खत्म कर देती हूँ सुनाकर। एकदम पर्सन मत बताना कि आपका। नहीं मुझे सर पता है, मुझे सर पता है कि मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई तो गैरों में शादी हो गई मेरी, और वो लोग हम लोग जो थे वो पठान थे और वो लोग अंसारी। तो जब हमारी शादी हुई तो जब नया नया माहौल था तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें सामने आई, अरे खड़े होके इस तरीके से चावल मत बीनो, आदमी की उम्र कम हो जाती है, कपड़ों में अगर वो जरा सा कुछ छेद हो या आग से कुछ जल गए, अरे फौरन उतारो 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 उतारो, आदमी की रिस्क कम हो जाती है, सर पे दुपट्टा रखा करो औरतों के सामने, मतलब शैतान लानत देकर जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें सामने आने लगी। मैंने कि हद हो गई यार, सर को ढाको ठीक है, लेकिन ये किसी के लिए ढाको क्या मतलब है ना? और ये ऐसा चीजें यार, ये इन सब चीज से मतलब कि उम्र कम हो जाएगी, ये क्या है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें आने लगी सामने, हद हो गई। तो खैर ये तो अलग मसला है। हस्बैंड का जो था हिसाब किताब थोड़ा सा बहुत ज्यादा रूड, और अपने घर वालों में ज्यादा रहते थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने बहुत सारे झूठ भी मुझसे बोले गए थे। तो मेरी शादी जैसे कैसे हो गई, तो वैसे जो होता है गाली गलौज, मारना कूटना, वो सब चालू हो गया। तो अब मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत सीधी थी, तो माँ बाप से कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, माँ बाप से जाके क्या बोल लूं, क्या मैं कहूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने भी यही सहा है, चुप रही है, अपने घर पे नहीं बोला, तो भी मुझे उसी हिसाब से अपनी माँ को देखते हुए मुझे भी उसी के अंदर एडजस्ट करना था। हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है भाई, जैसे भी हो भाई गुजारो जिंदगी, भले ही जूते खा रही हो, लाते खा रही हो, लेकिन शोहर है तुम्हारा, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना है तो गुजारना है। तो ये चीजें बहुत ही गलत है, ये चीजें बहुत ही गलत है। औरत के लिए जो है ये इन लोगों ने बहुत ही गलत चीज बना के रखी, एक सोच कि नहीं तुम्हारा शोहर है, तुम्हें अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना है तो गुजारना ही है, सुधर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन या खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, खुद की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जब एक लड़की शादी करके जाती है उसके भी कुछ अरमान होते हैं भाई। इसका मतलब थोड़ी ना कि आपकी लड़की है और बस आपने शादी कर दी, उसे पलट के भी मत देखो। तो खैर शादी का बहुत साल गुजर गए, तो कुछ
टाइम बाद फिर एहसास होने लगा कि भाई अपनी तो नहीं बनने वाली, तो मैंने उनसे कहा क्लियर कि भाई मुझे आपसे तलाक चाहिए। ओके। हाँ, तो मैंने आपको तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपके घर वाले भी मेरे को समझ से बाहर है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सब एक अखलाक के साथ मिलजुल कर एक साथ उसमें रहें, लेकिन आपके घर वाले अगर आप एक कॉल भी नहीं करते, मुझसे पूछते भी नहीं है मैं बीमार हूँ, कैसी हूँ, कैसे, कुछ मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक काफी साल बाद फिर मेरा उनका कांटेक्ट भी बहुत ही कम होता था। मैंने बहुत अपने आप को रोक के भी रखा कि ठीक है, लड़की हो गई थी मेरी। अच्छा, पर्सनल डिटेल ज्यादा नहीं बताइए आप। हाँ, नहीं, वो क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप आते हैं ना कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। तो यार हमारी जिंदगी क्या है, हम नहीं सही जिए है। क्या, हम नहीं जिए क्या, हमें घूमने फिरने का, कि हमें अच्छे रहने का हक नहीं है क्या? या सही बात। गाली सुन के हमारी जिंदगी, हम तो एक दिन मर के निकल जाएंगे, मरने के बाद की जिंदगी का भी हमें नहीं पता। तुम तो ये बोलते हो कि भाई जन्नत में ऐश और आराम है, हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं देखी जन्नत। भाई आज जो जिंदगी मिली वो तो जी ले, मरने के बाद की जिंदगी देखी जाएगी अगर होगी तो। सही बात है। तो हाल फिलहाल तो फिर मैंने उनसे ना डाइवोर्स का बोला कि भाई आप मुझे तलाक दो। तो वो आए दिन की लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इतनी अच्छी फर्माबरदार बीवी नहीं मिलने वाली थी, उनको ये पता था। हाँ, उनको मिलने नहीं वाली थी, उनको मिलने नहीं वाली थी। अरे फिर वो घर वालों को इकट्ठा किया गया एक बार कि ये इसको फर्मा बरदारी पे तो रसूलुल्लाह ने बहुत ज्यादा ये बहुत दिया ज्यादा। है। अरे हाँ, अरे आप शौहर को नाराज नहीं करना है, शौहर को नहीं, नाराज नहीं लानत करना लानत भेजते हैं फरिश्ते, है। हाँ। लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते, लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते। ओके। ये सुना है, ये आपकी वीडियो में सुना तो मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि भाई मैंने तो कई बार सुने ये लफ्ज, लानत भेज के जाते हैं, लानत भेज के जाते हैं। हाँ ठीक है, झेल लेंगे लानत। तो फिर घर वालों को इकट्ठा किया गया। अब घर वाले आए, समझा के चले गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, और अच्छा तो तुम अच्छी लड़की हो, समझदार हो, ऐसे नहीं करते, समझा बुझा के चले गए। उसके बाद मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीजें हो गई। हाँ, मुझे मतलब के पागल के डॉक्टर को तक दिखाना पड़ा मुझे। अरे रे 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 रे। ये हकीकत है ये। सही मैं बात है। नींद की गोलियां खाने लगी थी, क्योंकि जब एक औरत इज्जत चाहती है ना, प्यार नहीं चाहती, इज्जत चाहती है, जब उसको वो नहीं मिलती ना, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। सही बात है। उसके अस्तित्व पे हमला हो जाता है। हमला हो जा। आज जो औरतें इतनी बीमार जो है ना, दिमागी तौर पे, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सहन उन्होंने सहा है, इसलिए इतनी जल्दी बीमार पड़ रही है। हाँ। टेंशनों के अंदर तो कुछ खुशकिस्मत होती हैं जिनको अच्छे शोहर मिल जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं बेचारी सहती रहती। मेरी माँ ने अभी आज जिंदगी गुजार रही है और इस आदमी से कर रही है सफर। आदमी को पूरा हक है, वो भले दो तीन शादी कर ले, मेरे पापा ने भी करी शादी दूसरी, वो, लेकिन उनको हक है करने का। खैर मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो गए, सारे सिम्टम बताए उन्होंने, पागल जैसी हो गई थी, झाड़ फूक भी करवा दिया मम्मी ने, ताबीज भी बनवा दिए। मैंने क्या हद हो गई। जब ये 3-4 साल तक चलता रहा, एक दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो पूरे जितने भी ताबीज बने हुए तो उठा के मैंने जाके फेंक कर आ गई, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ताबीज, ये मुझे ताबीज नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेंटली डिस्टर्ब हूं मैं, मुझे कोई असर नहीं हुआ है,
कोई जिन्नातों का असर नहीं हुआ है, मैं हाँ, मेंटली ये डिस्टर्ब हूँ। हाँ, जो तकलीफ मिली है ये उसके हाँ, असर से तबीयत खराब हुई है। ये उसका क्या असर था, उससे खराब है। तो उसके बाद जब मम्मी से मैंने बात करना चालू करी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, फिर उनके समझ में आई। मैंने कहा अम्मा ऐसा ऐसा चीज है, मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना, क्योंकि एक बार जब दिल खराब हो जाता है ना, दोबारा फिर वो होता नहीं है फिर वैसा। सही बात है, बिल्कुल सही है आपकी बात। फिर उसके बाद ना फिर डॉक्टर को दिखा दिखा के काफी वो कोरोना ये स्टार्ट हो गया था। तो फिर हमने फिर डिसाइड किया, फिर घर वालों को बुलाया कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को मुझे नहीं रहना, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो घर वाले सब इकट्ठा हुए, बोले कि ठीक है, मैं इसकी मर्जी नहीं है, कुछ हो जाएगा। मैंने डॉक्टर फाइलें दिखाई उनको, फाइलें दिखाई मैंने उनको, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, क्योंकि मुझे दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि मुसलमान आदमी कभी एक अच्छा शोहर नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, ये आपके दिल में बैठ गई थी ये बात? बैठ गई थी, क्योंकि मैं देख रही थी, मेरे मामू को देखा मैंने, गाली लड़ाई झगड़ा। मेरे मम्मी को देखा, उनको क्या जिंदगी आज रोती है, बेटा मैंने को तो कोई जिंदगी नहीं देखी, तुम्हारे बाप के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वो कर दी, और जूते भी खाए, लाते भी खाए, और आज मुझे कुछ नहीं मिला, ना घूमना ना फिरना कुछ। मैंने कहा क्या जिंदगी है। तो मैंने तो ठान ली थी, मैंने बहुत दुआएं की, मैंने बहुत दरूद शरीफ पढ़े, मैंने बहुत पागल जैसी में रही, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ चीज अच्छा नहीं हो रही थी। इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है, इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है कि मैं रातों को तस्बीह पढ़ पढ़ के सो जाती थी। तो कोई अगर अल्लाह होता तो आपकी ये किसी से नहीं होता, ये खुद से चाहने से होता। अगर इंसान अपने अंदर ही यकीन पैदा कर लेना कि मैं ऐसा करूं ऐसा हो जाए, तो वो होता ही है। ये इंसान के खुद के अंदर पावर है। खुद को मेहनत करनी है, मेहनत करना पड़ती है खुद से। मैंने वहां से हटी, डिवोर्स लिया मैंने, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि कोई आदमी मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे किसी पे यकीन नहीं है, क्योंकि शौहर इतनी आसानी से नहीं मिलते अच्छे। फिर इत्तेफाक से मेरे एक से ऐसी नौकरी के सिलसिले में जान पहचान हुई एक शख्स से, वो भी डाइवोर्स थे। तो उन्होंने, जब हम लोग ककना में जाते थे ऑफिस वगैरह में, तो जब मुलाकात हुई, जब उनका भी सुना कि वो भी तलाकशुदा है, लेकिन दोस्ती के उसमें फिर हम लोग डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। तो मैंने ये चीज देखी कि उनके अंदर कोई भी किसी धर्म को लेकर कोई नहीं है, तो वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं कि भाई आप अच्छे कर्म करो बस, आपके अंदर अच्छी। आज आप खुश है आपके? बिल्कुल, वो अरे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो नहीं, आप सुनिए, उसके बाद करने के बाद घर वालों का क्या था, पापा ने बोला हमारा रिश्ता खत्म, भाइयों ने बोला तुम मर गई हमारे लिए, और आज सिर्फ मम्मी बात करती है मुझसे, बाकी कोई मुझसे बात नहीं करता, मम्मी बात करती है बस। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा, बस मेरे लिए काफी है। देखिए सीधी सी बात, लोग क्या मतलब कहते कि वो मारता है, वो कूटता है, वो गालियां बकता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है, वो मुस्लिम तो है। हाँ, ये आदमी मुझे सुबह उठने से पहले मेरे बेड पे चाय बनाकर दे, और अगर घर में अगर बाई नहीं आए, वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं। लेकिन वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम है, बताइए। लेकिन वो गालियां बकता, वो मारता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है।
अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं मैं? जी जी। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये मेंटालिटी मोमिनों के अंदर भरी पड़ी हुई है कि हाँ भाई आप देखो कि एक गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेफरेंस देंगे ईमान को। ईमान अभी को। जैसे कि इन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल सही है। वो कहेंगे कि यार वो चाहे चोर हो, चकार हो, और गालीबाज हो, या फिर शराबी हो, या खूनी भी किसी को क्यों, मारने शराबी क्यों, वाला लेकिन हो, मुस्लिम तो है। हाँ, कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट मुस्लिम है तो आपको उसके साथ रहना है। और वो गैर मुस्लिम कितना भी अच्छा हो, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जी, तो फिर हाँ, आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और आप खुश हैं, तो मैं फिर बहुत खुश हूँ। तो चैनल आप देखिए, मेरी आपको बच्ची, हस्बैंड ने मेरी देखा बच्ची है। को भी एक्सेप्ट किया है, अच्छे से वो प्यार करते हैं। हम्म। और क्या चाहिए मुझे? घुमाते सही फिराते बात। हैं, अच्छे से रखते हैं। भाई शोहर का हम्म। काम यही तो होता है, और क्या होता है? हम्म। इज्जत देना, मोहब्बत देना, और क्या होता है? सही, बिल्कुल सही कहा ये आपने। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अभी आपके हस्बैंड ने आपको चैनल फिर दिखाया, फिर जी आपने देखा, तो अब क्या है मामला आपका? देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं अब कुछ यकीन में रही नहीं। हकीकत बात ये है, हम्म। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, बस हम्म। अच्छे काम करूं, बस। नहीं तो इस्लाम में क्यों आपको इंसानियत नहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं? मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्या ऐसा देखा आपने, या क्या जान गए आप हमारा चैनल देखने के नहीं बाद देखिए, कि एक बात अब आप सुनिए, नहीं नजर मेरे आती? जो हाँ। बड़े पापा, मेरे बड़े पापा के इधर के जितने भी सब जमाती लाइन से, ठीक है, हाँ। जमाती लाइन के इतनी दीनदार, इतनी हदीसें कुरान आप पढ़ते हो, लेकिन दिलों में आपके दगाएं भरी हुई है, ना इत्तेफाकियां भरी हुई है। मेरे पापा ने इतना सब कुछ अपने भाइयों की औलादों के लिए किया, क्योंकि मेरे पापा के पास थोड़े, मेरे पापा अच्छे पैसे वाले थे, सबकी हेल्प करी। आज आज कोई भी नहीं पूछता उनको। न मेरी मम्मी जाती है तो ढंग से बात नहीं करे, पानी नहीं पिला। तो तुम्हारा किस काम का दीन, तुम्हारा किस काम का ईमान? जब तो इस्लाम और दीन खुद कह रहा है कि भाई अखलाक, बड़ों की इज्जत करना, मेहमान नवाजी करना, इतना जोर देते हो, तो तुम इतनी जमातों में जाते हो, तो तुम फिर अपनों के लिए क्यों फॉलो नहीं करते? और फिर क्यों फिर बयान करते फिरते? तो जब खुद ही तुम उसी राह पे नहीं चल रहा, जब खुद ही उस चीज को नहीं अपना रहे, तो फिर किस काम का बयान करो, फिर किस काम की जमात में जा रहा हो तुम? सही है। ये मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो जो बोलते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर, खुद के अंदर वो होता नहीं है। नहीं है, नहीं 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 नहीं। अरे सही। थोड़ा सा एक लफ्ज बोल दो ना, तो फौरन तो गाली मुंह पे आ जाती है। हाँ, गालियां तो ऐसा आ जाती हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब जरा में हो जाता। तो फिर क्या है कि मुस्लिम तुम जब बोल चलिए रहे अलीना हो कि जी, अलीना जी, जी इस बात की मुझे खुशी है, गम इस बात का जो आपने अभी जो पूरी स्टोरी बताई कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। फिर आपको इस्लाम की हकीकत भी पता चल गई और आप इससे बाहर निकल गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। आपके लिए। और अलीना जी के लिए एक एक गुलाब का गुलदस्ता मैं चाहूंगा हमारे जितने अरे व्यूअर्स देख रहे हैं भेजे। शी इज लकी कि उनको एक प्यारा यस, सा। आई एम लकी नाउ, आई एम लकी नाउ, आई एम लकी। जी। तो
बहुत बहुत ये शुक्रिया एहसास हुआ, अलीना ये जी एहसास करने हुआ के लिए। है, ये एहसास हुआ है ये जब मैं यहाँ पर कोई शादी करके जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एहसास हुआ कि भाई शोहर किसे बोलते हैं, हाँ हकीकत हाँ है, हाँ, सीखना चाहिए तो मेरे मेरे तरफ को। से आपके जो हस्बैंड है उनको सलूट कहना मेरे तरफ से। वो सुन रहे हैं, वो और दूसरे मोबाइल से सुन रहे हैं, अच्छा और अच्छा, मैं भी चलिए। बस मेरा सिर्फ एक ही है रकम कि एक मुसलमान जब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक एक अच्छा इंसान नहीं हो। सही, चलिए मुसलमान बहुत शुक्रिया अलीना जी। थैंक यू सो मच। मुझे खुद यकीन नहीं थैंक हो यू रहा सो कि मच। मैं आप लोग को इतने टाइम से सुन रही थी और मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। और एक एडम सर हैं, वो भी मुझे मैं उनको भी काफी सुनती हूँ। जी, और आपकी तो वीडियो मैं देखती ही रहती हूँ, दिन भर में 3 या 4 तो मैं देख ही लेती हूँ, वीडियो सुन लेती हूँ क्या बात है, थोड़ा थोड़ा बहुत करके। बहुत शुक्रिया अलीना जी, थैंक यू सो वेरी मच अच्छा, फॉर एक और चीज जॉइनिंग। मैं बोलना चाहूंगी जी, कि जब हमारे जो नबी है, नबी से पहले और भी जितने नबी आए थे तो उन्होंने क्या किया था? वो 1 लाख कुछ नबी आए थे तो उन्होंने इस्लाम नहीं फैलाया था? हाँ फैलाए थे ना, लेकिन फिर वो उड़ उनके गया वो। बारे में इतना क्यों नहीं है डिटेल? मुझे समझ में नहीं आता कि जब आखिरी नबी ये था तो वो पिछले जो जितने भी नबी आए उन्होंने बताया है, तो वो उनके बारे में कौन बताएगा? उनकी असल जिंदगियों में के हालात देखो, कौन बताएगा? असल में क्या है ना कि इस्लाम का अब जो पूरा अगर किताबी जो भी चीजें बताई गई है उसके हिसाब से चलो तो अल्लाह हमेशा जो है वो फेल ही हुए हैं। हम्म। हाँ, वो एक नबी के बारे में आता है कि भाई 1000 साल तक तबलीग किए लेकिन एक भी इंसान तो वो कलमा नहीं पढ़ा, वो इस्लाम उसने कबूल नहीं किया। मतलब और एक फेलियर ही फेलियर आपको मिलेगा, फेलियर ही फेलियर सही। और हमेशा। एक वो हाँ, जो कुरान के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा डाला गया है, तो वो तो एक मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों, कि उनके बेटे थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ साजिश करी तो उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर वो रोते रोते उनकी आंखें चली गई, नाबीना हो गए, फिर वो बड़े हो गए तो कहीं पर इनको मुलाकात हुई। सब बिना सर पैर की कहानियां हैं और कुछ नहीं है, या फिर दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट मारा है, समझ रहे? तो बस मुझे हाँ, यही बस जानना था कि ये हमारे जो नबी थे वो तो ठीक है, उससे पहले जो आए हैं उन्होंने दीन फैलाया नहीं क्या? उनके हालात क्या थे, क्या उनका हिसाब किताब था? तो वो कहाँ नहीं से है, पता और चलेगा? कम से कम उनके मानने वाले तो होना चाहिए था। मानने वाले होना चाहिए। फिर अभी इधर एक आम इंसान जो है वो थोड़ा सा बाबागिरी शुरू कर देता है, पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाता है और उसके मानने वाले रहते हैं। तो 1,24,000 के मानने वाले गए किधर? किसी कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये सब बस कहानियां हैं, बोंगियां हैं, इसमें हकीकत आपको कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगी। और आज सब मैं एक वीडियो आपका वो देख रही थी जो हजरत आयशा का, कि उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया कि भाई आयशा पे तोहमत मत लगाओ, वो तो बेगुनाह है। उसको तो बल्कि रसूलुल्लाह ने तो वो अपने घर पे चले गई थी, वो इतना टॉर्चर वो किया, तो उन्होंने, परेशान वो हो तो गई उनका वो। मंथ, उसका जो पीरियड आने का वेट किया, वो तो उन्होंने, वो तो पीरियड्स आने का वेट किया था उन्होंने, ताकि वो बता सके कि भाई मेरे पास वही आई, अल्लाह ने बताया कि वो बेगुनाह है। वो तो पीरियड्स आने का इंतजार कर रहे थे 1 महीने से। नहीं तो क्या ये जरूरी है कि अगर इंटरकोर्स हो तो आपको हमल ठहरेगा ही ठहरेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बात हो गई कि अगर पीरियड्स आ गया तो मतलब किसी ने कुछ नहीं किया है? ये कौन सा साइंस है भाई? वो समझ में से बाहर है। तो मैंने पूरी वीडियो देखी तो फिर मैंने कहा यार क्या हद हो गई यार।
और अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था हजरत आयशा का, मुझे ये पता था कि बस निकाह हुआ है और शायद आसमान में फिर दुनिया खत्म होने के बाद उनका निकाह फिर से होगा, इतना पता था। और ये भी नहीं पता था कि उनकी बिदा ली गई थी और उनके साथ जो भी हुआ था वो भी नहीं पता था। और फिर उनके जो दोस्त थे, उनकी बीवी उन्होंने तलाक दी, उन्होंने उनको बिना लिबास के देख लिया था, ये भी नहीं पता था। फिर उन्होंने उनसे निकाह किया, ज़ैनब। सही। तो ये हकीकत सब हमारे चैनल जितने हैं उससे आपको आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें पता चली, राइट? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें तो सिर्फ ऊपरी अच्छी चीजें बताई गई हैं कि हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे। और बयान के अंदर भी इस तरीके से बयान करते हैं कि इंसान रो रो के पागल हो जाए। हम भी रोया करते थे कोई एक जमाने में। हाँ, अरे हाँ, तो इतनी शिद्दत दुआओं में सैंपल दे दो, थोड़ा सैंपल दे दो। अभी वो तारिक जमील को नहीं देखते किस तरीके से बेचारा हमेशा रोते ही रहता, मेरे अल्लाह ने ये फरमाया है, मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने ये फरमाया है, मेरे सैंपल अब वो वहां पे मक्का में नमाज पढ़ रहे हैं, ओ मक्का में नमाज चालू है, तरावी वरावी पढ़ रहे हैं। तो चलो ये अपने क्या नाम है जो इमाम होते हैं वहां के, उनको तो समझो कि कुरान समझ में आता है, तो किधर जाके रोना शुरू कर देते कोई एक पॉइंट पे कुछ भी। तो उसके बाद पीछे से पब्लिक क्यों रो रही है तुमको तो समझ में भी नहीं आया। ये भी दाएं दाएं रो रहे हैं लोग। तो ऐसी बेवकूफी हम भी करते थे, लेकिन हाँ निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। और आप भी निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच अलीना जी। बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, टेक केयर।